السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار اور میں ہوں ساریہ سیمسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں مصطفیٰ عامر قتل کیس، اہل خانہ کو تاوان کے لیے کی جانے والی کال کی آڈیو بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ کال پر ملزم اور مصطفیٰ کی والدہ کو بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ کال پر ملزم تاوان کی رقم کے لیے لیاری بلواتا رہا، والدہ بیٹے کی تصویر دکھانے کے لیے اصرار کرتی رہی۔ اس لیے تو نہیں، آپ مجھے پہلے اس کا کوئی ثبوت دیں گے؟ نہیں، یہ بھی ہم نہیں کرتے، ثبوت دیں پھر اس کو آگے دیا جائے، ہوشیاری دی جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس میں پاگل لکھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ بھائی بات کروانی ہے آپ کو میرے سے، اتنا ظاہر ہے مجھے بھی تو جاننا ہے نا۔ کچھ بھی نہیں کروانا ہے، جو بھی ہوگا فیس ٹو فیس ہوگا۔ یہ چھوڑو کہ 23 لوگوں کے فون آ رہے ہیں، 24 لوگوں کے۔ بھائی ابھی تصویر بچے کی بھیج دو۔ ہم کچھ بھی نہیں بھیجتے، جو بھی ہوگا سامنے سامنے ہوگا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ کہاں ہوگا؟ یہ آ رہی۔ بھائی بات سنیں، جو رقم آپ بول رہے ہیں نا، وہ میں کوئی لے کے تھوڑی نہ بیٹھی ہوں، جو میں ایک دم سے آپ بولیں گے اور میں لے کے آ جاؤں گی۔ چلو نمبر ہے تمہارے پاس، اس پہ کال کر لینا، جب باقی اس سے تسلی ہو جائے پھر یہاں فون کر لیتا۔ تو کراچی میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام، فائرنگ کے مختلف واقعات میں ایک شخص جان سے گیا، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ناردرن بائی پاس پر پولیس موبائل پر ہینڈ گرنیڈ حملہ۔ قائد آباد پل کے نیچے بھی پولیس کیمپ پر کریکر حملہ کیا گیا، 3 پولیس اہلکار اور 1 راہگیر زخمی ہو گیا۔ کراچی میں قتل و غارت گری کا سلسلہ نہ رک سکا، سہراب گوٹھ میں فائرنگ سے ایک شخص جان سے گیا۔ مقتول کی شناخت رضا خان کے نام سے ہوئی۔ نیو کراچی سیکٹر 11F میں اتفاقیہ گولی چلنے سے بشیر نامی شخص زخمی۔ اورنگی ٹاؤن لیاقت چوک کے قریب فائرنگ سے 28 سالہ عالمگیر زخمی ہو گیا۔ موسیٰ کالونی میں جھگڑے کے دوران فائرنگ، علی نامی شہری زخمی ہوا۔ لوٹ مار سے تنگ شہری ڈکیتوں کے خلاف خود میدان میں آ گئے۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں عوام نے ڈکیت کو دھر لیا، درگت بنا ڈالی۔ پکڑا جانے والا ڈاکو معطل پولیس اہلکار بتایا جاتا ہے۔ شہر قائد میں پولیس بھی ملزمان کے نشانے پر۔ ناردرن بائی پاس پر پولیس موبائل پر ہینڈ گرینیڈ حملہ، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قائد آباد پل کے نیچے بھی پولیس کیمپ پر کریکر حملہ کیا گیا، 3 پولیس اہلکار اور 1 راہگیر زخمی ہو گیا۔ حملے کا مقدمہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ کراچی سے کرائم کے حوالے سے آپ نے جانا، رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں خاتون سے زیادتی کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کارروائی متاثرہ خاندان کی نشاندہی پر عمل میں لائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ملزمان نے دوران ڈکیتی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ فیصل آباد میں خاتون سے زیادتی کا واقعہ۔ میری بیوی ہے شمیلہ نور، اتنا زیادتی ہوئی ہے، اسی اپنے مجرم نو پہچان لیا وا، اسی مجرم پہچان سکتے ہیں تو سارا نام جڑا نام مقدمے سے درج کیتا جائے۔ اسی نہ کسی دباؤ چ، نہ کسی پولیس کے دباؤ چ، نہ کسی رشتے دار کے دباؤ چ، اسی اپنی بالکل خوش آواز چ اس مدعی مجرم پہچان سکتے ہیں تاکہ سارا نام مقدمے سے درج کیتا جائے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ متاثرہ خاندان کی نشاندہی پر پولیس نے کارروائی کی، متاثرہ افراد کو انصاف دلائیں گے۔ جب تک وہ ملزم جو آج گرفتار ہوا ہے شیر علی، جب تک وہ گرفتار نہیں ہوا، چیف منسٹر نے ایک لمحے کا جو ہے وہ سکون نہیں لیا۔ وہ ہر وقت پورا وقت اس آپریشن کی خود نگرانی کرتی رہی۔ باقاعدہ جیو فینسنگ ہوئی ہے، خاتون کا میڈیکل ہوا ہے، اس کے ساتھ فورنزک جو ہے وہ پوری ڈیٹیلز فورنزک کی موجود ہیں، اور اس کے بعد اس ملزم کا اعترافی جو بیان ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی پولیس کو شاباش دی۔ پاک پتن میں افسوسناک واقعہ، عید کے لیے پیسے نہ ملنے پر 8 سالہ بچے نے ماں کو کینچی مار دی۔ خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی باسی ہار گئی۔ اس وقت نمائندہ بول نیوز طارق حسین بھٹی مقتولہ کے گھر کے باہر محلے داروں کے ہمراہ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی طارق، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل، اس وقت ہم پاک پتن کے محلہ گلزار آباد میں موجود ہیں، جہاں پر بچے نے ماں سے جو ہے وہ عید کے لیے پیسے مانگے تو ماں نے انکار کر دیا، جس کے بچہ جو ہے رنجش میں آ کر ماں کو کینچی کے وار سے قتل کر دیا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ محلے دار بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیے گا یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ یہ بچہ باہر سے آیا ہے، اس نے اپنی ماں سے کچھ پیسے مانگے ہیں، تو ماں بہت قریب ہے اس لیے اس نے دے نہیں پائی، جس کی وجہ سے بچے نے رنجش کی بنا پر آ کے ماں کو کینچی مار دی، اور ماں موقع پر ہی 10-15 منٹ بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی
जैसा कि आपने महल्ले दार की बात सुनी, नाजरीन, अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए ये वाक़यात जो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, ऐसे अफसोसनाक वाक़यात लम्हा है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। पाकपतन में कैंची लगने से खातून की हलाकत, इस हवाले से माइंड साइंसेज एक्सपर्ट डॉक्टर मुइज़ ने वाक़ये को समाज में दिखावे के बढ़ते रुझान का शाखसाना करार दिया है। उनका कहना था कि माशरे में बड़ों का अदब, सब्र और बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जिसके बाइस ऐसे दिलखराश वाक़यात सामने आ रहे। जो वाक़या पेश आया बड़ा दर्दनाक, बड़ा हौलनाक, कि एक बेटे ने माँ से पैसे मांगे ईद के लिए, माँ नहीं दे सकी तो उसने गुस्से में और इश्तियाल में आकर कैंची से अपनी माँ पर हमला किया और इवेंचुअली उनकी माँ की डेथ हो गई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह माशरे के अंदर जो शो ऑफ का माहौल है ना, कि हर कोई अपनी कोई वीडियो बनाता है, कोई रील बनाता है, ये माशरे में बढ़ती हुई खून रेजी, ये माशरे में बढ़ता हुआ बेअदब, अखलाकियात का जनाजा, बर्बाद, माँ बाप की इज्जत नहीं, माँ बाप का एहतराम नहीं। हमारे अतराफ़ में जिन लोगों के पास बहुत कुछ है उसको देखकर हमें एहसास कमतरी होती है। एहसास कमतरी में फिर इंसान को इश्तियाल आता है, जब इश्तियाल आता है तो वो फिर इस किस्म के इक़दाम उठाता है। और अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक हादसात की। तो इस्लामाबाद, चकवाल और हरीपुर में खौफनाक ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, कई अफराद जान की बाजी हार गए। शहर इक़्तिदार में सब्जी मंडी के करीब डंपर ने 5 गाड़ियां रौंद डाली। अफसोसनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। टक्कर मारने वाला डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रावलपिंडी से चिश्तियां जाने वाली मुसाफिर बस चकवाल के मकाम पर उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 30 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर हरीपुर में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 22 अफराद जख्मी हो गए। 15 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इस हवाले से ये जाने कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद ट्रैफिक हादसे का नोटिस ले लिया है, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत की है और हादसे की रिपोर्ट मांग ली है। वज़ीर आज़म ने हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत की दुआ की और उनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी अफराद को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी है। तो कराची में सुपर हाईवे DHCT इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तार 2 कारों के टकराने के बायस पेश आया। हादसे में एक कार उलट गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डंपर और ट्रक वालों को कैमरे लगाने की हिदायत कर दी गई है। ट्रक, डंपर्स और टैंकर्स के व्हील्स के गिर्द हिफाजती शील्ड्स भी लगाई जाएंगी। गाड़ियां अपडेट करने के लिए 3 माह की मोहलत दे दी गई है। कराची में ट्रैफिक गर्दी, हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास हुआ। DIG ट्रैफिक ने शुरा को बताया कि मलीर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ट्रैफिक हादसात में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। उन्होंने गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स को हादसात की बुनियादी वजह करार दिया। कराची पुलिस चीफ ने ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। उनका कहना था कि हमें फौरी तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूल कायम करने होंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ट्रक और डंपर्स मालिकान को 3 माह में गाड़ियों में कैमरे, ट्रैकर्स और व्हील्स के गिर्द हिफाजती शील्ड नस्ब करने के अहकामात जारी कर दिए। IG सिंध का कहना था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक की हद रफ्तार का न सिर्फ तयन करे बल्कि शाहराहों के अतराफ में आवेजा भी करे। कराची के इलाके लियाकताबाद में पानी की अदम फराहमी पर आवाम का एहतजाज, शहरी सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद पुल का एक ट्रैक बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का पानी की फराहमी का मुतालबा। उधर टंडू मोहम्मद खान में सरकारी अस्पताल की लेडी डॉक्टर का मुबैना गफलत, जुड़वा बच्चों की पैदाइश के दौरान एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा माँ के पेट में ही रह गया, जिसे बाद में मुर्दा हालत में दोबारा ऑपरेशन करके निकाला गया। मुतासरा खानदान ने डॉक्टर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। टंडा मोहम्मद खान के सरकारी अस्पताल इलाज कराना महंगा पड़ गया। लेडी डॉक्टर की गफलत ने बच्चे की जान ले ली। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आई खातून से डॉक्टर ने निजी अस्पताल बुलाकर 9 माह तक भारी फीसें वसूल की। खातून की बहन ने कहा कि 4 बार अल्ट्रासाउंड कराने के बावजूद डॉक्टर दूसरे बच्चे को न देख सकी। सीजर ऑपरेशन में एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा माँ के पेट में रह गया, जिसके बायस खातून 3 माह तक शदीद तकलीफ में मुब्तला रही। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए अदालत पहुँच गया। समाजी हल्के सरकारी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में
सरगर्मियों पर नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि कोयटा से आज 2 ट्रेनें रवाना होंगी। डीएस रेलवे इमरान हयात के मुताबिक कोयटा से आज एक ईद स्पेशल ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस रवाना होगी। ट्रेन की रवानगी के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि कोयटा से जैकबाबाद तक सिक्योरिटी प्लान असर 9 तरतीब दिया गया है। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा जाम शोरों में ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूली के खिलाफ मोटरवे पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। M9 मोटरवे पर 9 लाख रुपए से ज्यादा किराया वापस करवा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट मालिकान को 8 लाख जुर्माना भी किया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने शहरियों से ज्यादा किराए वसूल किए थे। और आपको बताएं कि छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। कराची में रंग बिरंगी खूबसूरत चूड़ियों की खनक के बगैर खवातीन की तैयारी मुकम्मल नहीं होती। करीमाबाद मार्केट में चूड़ियों की दुकानों पर खवातीन का रश है। रावलपिंडी में मैचिंग बैग पर सेल लग चुकी है, जबकि लाहौर में खवातीन अपने पसंद के रंग में दुपट्टे रंगवा रही हैं। हैदराबाद में हर कोई कम से कम कीमत में खरीदारी की कोशिश में मसरूफ है, जब उधर सक्खर में वालिदैन के साथ बच्चे 2-2 जोड़े खरीद रहे हैं। लाड़काना में भी खवातीन सिंधी सकाफती हाथ के बर्द पर हाथ साफ कर रही हैं, जबकि कराची से मरियम हसन, लाहौर से खुरम मलिक, रावलपिंडी से इसरार खान और हैदराबाद से इरफान अराई, सक्खर से शाहिद अली, लाड़काना से शहजाद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कराची की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे मरियम हसन से। जी मरियम, खवातीन के 16 सिंगार में से एक सिंगार चूड़ियों को भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। बर्र-ए-सग़ीर की रिवायात में जो है खवातीन का अहम सिंगार जो है वो चूड़ियों को समझा जाता है, और यही वजह है कि चाहे कोई भी मौका हो, त्यौहार हो, खवातीन जो है वो चूड़ियाँ अपने हमरंग लिबास के साथ जो है वो लाजमी खरीदती हैं। इनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा क्या समझती हैं, चूड़ियाँ कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं लड़कियों के लिए, और ये बताइएगा तैयारी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है, और चूड़ियाँ तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चूड़ियों को पहनने के बाद हमारा ड्रेस बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, और चूड़ियों को पहनने से हमारी रौनक में 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि खवातीन स्पेशली इंतजार क्यों करती हैं लास्ट डेज का? शुरू में ले लेते भाई चूड़ियाँ, आखिरी दिनों में क्यों आते हैं बाजारों में? हमें पता चलता है ना, हम इंजॉय करते हैं। आपको पता है कराची वालों की तो आदत है पुरजोश पुर रौनक है, तो फिर लास्ट के मौके पे चूड़ियाँ ज्वेलरी लेते हैं, तो इससे हमें ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है। यकीनन ईद का मज़ा जो है दोबाला करने के लिए खवातीन खुसूसी तौर पर जो है लास्ट ईद से चंद रोज़ कबल ही जो है बाज़ारों का रुख करती हैं, ताकि भरपूर तरीके से शॉपिंग भी हो सके, और उसके साथ साथ ईद का, चांद रात का और शॉपिंग का मज़ा जो है भरपूर तरीके से। ठीक है मरियम, आप हमें चूड़ियों की खरीदारी के हवाले से आगाह कर रही थी। रुख कर लेते हैं ज़रा लाहौर का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे खुरम मलिक हमें बता रहे हैं किस तरह से खवातीन शॉपिंग कर रही हैं लास्ट मोमेंट, वो भी दुपट्टों की। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और हर तरफ खरीदारों का रश जो है वो दिखाई दे रहा है। खवातीन हों, बच्चे हों, मर्द हजरात हों, बुजुर्ग हों, हर शख्स की कोशिश है कि वो ईद की तैयारी को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल कर ले, और पसंदीदा सूट जो है वो अपने उनको खरीदें, और ईद वाले दिन जो है वो सबसे प्यारा जो है वो दिखे। दुपट्टों को रंग करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। खवातीन जो है अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रही है। यकीनन खवातीन से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा, ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली? हाँ जी, क्यों नहीं, पहले से की, थोड़ा बहुत बाकी था वो कर रहे हैं। आज क्या खरीदने के लिए आएंगे? आज हम चूड़ियाँ, बैंगल्स और कुछ अपनी बेटी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि ईद के जज्बात जो उनसे हैं वो बच्चे भी रखते हैं। अभी तो फिलवक्त यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा रश है, तो मैं यहाँ पे जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें रह गई हैं, जैसे बैंगल्स हो गई, मैचिंग शूज़ हो गए, और इस तरह की चीज़ें जो मैं यहाँ बाज़ार से लेने आई हूँ। इसी तरह लाहौर की तमाम बड़ी मार्केट्स में जो है वो खवातीन का रश जो है वो लगा हुआ है, और तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं, क्योंकि ईद में अब चंद दिन जो है वो बाकी रह चुके हैं। और ठीक है, खुरम मलिक ने हमें लाहौर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया, और अभी हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं इसरार खान। इसरार खान, बताएगा लाहौरियों की ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है, और ईद उल फितर के हवाले से ख़रीदारी की अगर हम बात करें तो जहां मर्द हज़रात की जानिब से कपड़े, मलबूसात खरीदे जा रहे, जूते खरीदे जा रहे, मैचिंग के सूट के साथ साथ मैचिंग के जूते खरीदे जा रहे, और जूतों के साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर जूते मैचिंग के हो तो साथ में क्लच भी मैचिंग का होना चाहिए। और ये देखिए आप मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत के जो क्लचेस है इस वक्त मार्केट में मौजूद है। आप बताइए, ये क्लचेस जो है क्या खास किस्म के क्लचेस है?
किस तरह? ये हमने खास कर ईद के लिए बनवाए गए, ठीक है, जो फैंसी ड्रेसेस के साथ आप लेडीज़ कैरी कर सकती है, शॉर्ट हैंड कैरी में शॉर्ट क्लचेज़ है, मैचिंग, क्योंकि ईद के त्यौहार है, इसके अंदर आपको ड्रेसेस डिफरेंट ड्रेसेस है, डिफरेंट कलर्स है, उसके साथ आपको डिफरेंट क्लचेज़ मिलेंगे, ठीक है, और बहुत ही मुनासिब रेट में, मींस कि हमारा फ्लैट 20 to फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। आपको क्लचेस भी मिलेगा, शूज़ के अंदर भी आपको ऑफ मिलेगा, मैचिंग क्लचेस, मैचिंग शूज़, जिस तरह के ड्रेसेस हैं उसके साथ हर मिलेंगे। दुकानदारों ने सेल लगा दिए खवातीन के लिए स्पेशली तौर पर, और मैचिंग के जो क्लचेस है वो यहाँ पर दस्तयाब है, और खवातीन का जम गफीर यहाँ पर मौजूद है जो कि ईद की तैयारियां कर रहा है। आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।